Good morning, students. This is lecture number 5. In the previous class, we started with some MCQs of assignment number 1. Some MCQs are still pending, but today, because your DCT also was there as the part of the chapter, which took away almost 20 minutes. So first, I would like to cover the theory part, that is laws of vector addition. You know that vectors can be added. Now, there are different styles of adding them. Next, we are going to see vectors can be subtracted. Only one style. Subtraction of vectors is just 5 minutes. Multiplication of vectors is time consuming. Dot product will take almost 2 lectures. 1 lecture of understanding the concept and 1 lecture of solving the MCQs. Cross product again will take 2 lectures. Now in this entire vectors, what we are going to discuss, super duper important articles are 3. One is parallelogram law of vectors, as you see star is to 10. Next is dot product, which is going to come throughout your syllabus. And next is cross product, again it is going to come throughout your syllabus. Okay, so one by one. The first law of vector addition is commutative law. Let me make it very simple for you. Let me start with very simple example only. Suppose this is a road. Suppose this is a road and vehicles are going in this direction and this direction both. Right? You are standing on this side of the road and you want to reach this point. Now when the traffic is on, that means it is red signal for the pedestrians and it is green signal for the cars, means you are not supposed to cross the road. So what will you do during that time? Will you not use your time and go from here to here just to use your time, right? And once it is green signal for you and red signal for the cars, can I say you will cross the road? Yes or no? That means this was your initial point. This was your initial point, and this is your final destination. Yes or no? So if I am calling this as vector A and this as vector B, then do you agree with me? This is the displacement vector. Yes. This is the displacement vector. If it was night time, say 11 o'clock, 11 p.m. and now it is yellow signal, that means no red signal for anyone, not for the cars, not for you also, right? And if there are no cars going and coming, won't you cross the road directly? Yes. Why will you waste your time like this? Suppose this is 4 and this is 3. That means you are actually walking for 7 meters, right? But you had to walk only for 5 meters. So if that 5 meters is available to you, why will you walk unnecessarily like this? Do you agree with me? So इसको बोलते बेटा vector R. And what is the meaning of vector R here? Is it vector A plus vector B? क्यों मैंने पहले A लिया, बाद में मैंने B लिया. अभी उल्टा सोचो. Suppose जब आप इधर खड़े थे, it was already a green signal for you. It was already a green signal for you. Won't you use that time and cross the road first? Yes. Yes or no? मतलब पहले बेटा आप ये वेक्टर लोगे और बाद में आप सामने पहुंच के you will start walking on the footpath like this. Yes or no? तो अभी आपने कौन सा वेक्टर लिया पहले? वेक्टर B, बाद में वेक्टर A लिया, right? Don't you think आपका रिजल्ट सेम है? Don't you think आपका रिजल्ट सेम है? लेकिन आप लिखोगे कैसे इसको? Now vector R is vector B first and vector A afterwards. Yes or no? आपने पहले A लिया, बाद में B लिया. That means resultant vector is vector A plus vector B. Sum of two vectors is a vector, right? अब आप B ले रहे हो, बाद में A ले रहे हो. That means vector B plus vector A is vector R. Moral of the story: commutative law means if vector A plus vector B is matching with vector B plus vector A, then that is called commutative law. Was it not very easy? Was it not very easy? This itself is the continuation for associative law, right? आप यहाँ पे खड़े हो, right? आपने रोड क्रॉस किया, फिर आप एक मॉल में एंटर कर रहे हो, आप एस्केलेटर से सेकंड फ्लोर तक गए, एस्केलेटर से सेकंड फ्लोर तक है, आपको एक थिएटर में जाना है, वो 4th फ्लोर पे, एस्केलेटर से सेकंड फ्लोर तक जा रहा है, then you can take lift. Yes or no? मतलब इधर 2 वेक्टर्स थे, उसके बदले इधर 3 वेक्टर्स हैं. अब ये वेक्टर को अगर मैं वेक्टर ए बोलता हूँ,
इसको मैं वेक्टर बी बोलता हूं और इसको मैं वेक्टर सी बोलता हूं, राइट। तो पहले मैं ये दोनों को सॉल्व करूंगा, ए और बी को। तो बेटा ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यस और नो? और उसके साथ में सी को क्लब करूंगा। सो दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फर्स्ट एंड देन वेक्टर सी। So what is my resultant answer? What is my resultant answer? This one, because this is my final destination, right? ये मेरा final point है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ये मेरा initial point था, right? तो ये मेरा red वाला आंसर क्या है? Vector R. R का मतलब resultant, final, total, net, equivalent. Is it vector A plus vector B? And then vector C, yes or no? Mind you, कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर पहले मैं वेक्टर B plus C ढूंढ लूं तो चलेगा क्या? Answer is yes, because we have seen in the previous article that addition of vectors is commutative. अगर मैं 2 plus 3 लेता हूं बेटा, तो कहना है 3 plus 2 is correct. लेकिन अगर मैं 2 minus 3 लेता हूं, तो 3 minus 2 is not correct. अगर मैं 2 into 3 लेता हूं तो 3 into 2 is correct. लेकिन अगर मैं 2 upon 3 लेता हूं तो 3 upon 2 is not correct. Right? 2 minus 3 cannot be 3 minus 2. So in the language of algebra, we say that addition is commutative, subtraction is not, multiplication is commutative, division is not. तो अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर पहले मैं b plus c ले लेता हूं, उसके बाद में उसको a में ऐड करूंगा, perfectly okay. Your answer will be the same. लेकिन इसको लिखने का स्टाइल अलग है। लिखने का स्टाइल बेटा ये है, वेक्टर R is vector A plus vector B plus vector C. Now very important part is the location of the bracket. Very important part. अगर बेटा मैं 2 plus 3 plus 5 equal to 2 plus 3 plus 5 बोलता हूँ, तो naturally 10 is equal to 10. लेकिन एक में हम लोग बोल रहे हैं 2 plus 3 plus 5 और एक में हम लोग बोल रहे हैं 2 plus 3 plus 5. फर्क समझा? So as per Bodimus rule, you have to solve the bracket first. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हुआ 5 plus 5, क्योंकि मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, और राइट हैंड साइड हुआ 2 plus 8. Is that clear? मतलब आंसर लिखने का स्टाइल थोड़ा बदला. आंसर लिखने का स्टाइल थोड़ा बदला. In mathematics, bracket, decimal point, multiplication sign, ये सब किधर है? It is very very important. एक थोड़ा फनी सा एग्जांपल है, लेकिन सोचो डेसिमल पॉइंट चेंज होता है तो मीनिंग कितना चेंज हो जाता है. आई एम राइटिंग वन सेंटेंस इन हिंदी. यहां थूकना मना है, स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड. थूकने वाले को सजा होगी. इफ यू डू दैट यू विल बी पेनलाइज्ड. मतलब फुल स्टॉप इधर है बेटा, राइट? क्या था ये सेंटेंस? यहां थूकना नहीं, थूकने वाले को सजा होगी. अभी किसी टाइम पास आदमी ने क्या किया, ये फुल स्टॉप यहां से हटा के यहां पे डाल दिया. नाउ चेक हाउ इट रीड्स. यहां थूकना नहीं, थूकने वाले को सजा होगी. मींस यू स्पीक हियर, बट इफ यू डोंट स्पीक देन यू विल बी पेनलाइज्ड. सोचो बेटा, खाली एक डेसिमल पॉइंट चेंज हुआ लेकिन मीनिंग चेंज हो गया. सो लाइकवाइज ब्रैकेट की लोकेशन जब चेंज होती है तो उसका लिखने का स्टाइल चेंज हो जाता है. तो हाउ विल आई राइट दिस वेक्टर? कम ऑन, हाउ विल आई राइट दिस? Vector A plus vector B plus vector C is equal to vector A plus vector B plus vector C. बेटा यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, लेकिन ये दोनों का मतलब सेम होता है. You will end up to the same answer, right? If it was true for 3 vectors, if it is true for 3 vectors, then it is true for multiple vectors. ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो. मैं रोड की एक साइड पे खड़ा हूं, मैंने अपना गाड़ी पार्क किया इधर, मैंने रोड क्रॉस किया, मैं मॉल में एंटर हुआ, फिर मैंने एस्केलेटर लिया, मैं सेकंड फ्लोर पे गया, सेकंड फ्लोर के बाद मैंने एलिवेटर लिया, मैं 5th फ्लोर पे गया, और उधर थिएटर इधर नहीं है, इधर है, मतलब मैं वॉक करके इधर गया. Is that clear? और ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है. अगर मैं स्पाइडरमैन होता तो मैं डायरेक्ट इधर जाता, बराबर ना?
रोड क्रॉस वॉस कुछ नहीं करता, स्पाइडरमैन बराबर। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दैट मींस इफ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी, देन कैन आई से माय रिजल्टेंट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सबसे पहला प्रॉब्लम किया था उसमें 3 वेक्टर्स ऐड किए थे, फिर थोड़ा आगे जाके उन्होंने 3 फोर्सेस दिए थे और उन्होंने पूछा था कि वेयर विल द पार्टिकल मूव, तो आप उसमें भी 3 फोर्सेस ऐड करते थे। यहाँ पे यू कैन ऐड एज मेनी वेक्टर्स एज पॉसिबल, एज मेनी, लेकिन इसमें यू हैव टू कंटिन्यू इन 2 पार्ट्स। पहले ए और बी को सॉल्व करो, तो ये मिला ए प्लस बी, पहले ए और बी को सॉल्व करो, ये मिला a प्लस बी, ब्रैकेट में डालो। अभी a प्लस बी को c के साथ सॉल्व करो, वापिस एक वेक्टर बनाओ। तो व्हाट इज दिस, वेक्टर a प्लस वेक्टर b ब्रैकेट में प्लस c। लेकिन अपना जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, d भी है ना, तो अभी a प्लस बी प्लस c को d के साथ ऐड करो, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस c प्लस d। लेकिन इधर ब्रैकेट जरूरी है। पहले मैंने a प्लस बी लिया, उसमें c ऐड किया, जो आंसर मिला उसमें d ऐड किया। इज दैट क्लियर? मतलब एक एक ब्रैकेट ऐड करते जाने का। इज दैट क्लियर? 5वां वेक्टर होता तो मैं क्या लिखता, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d प्लस वेक्टर e। पहले a प्लस b लिया, उसके साथ जो आया उसके साथ c लिया, उसके साथ जो आया उसके साथ d लिया, और ये मेरा फाइनल आंसर है। So when you have more than 3 vectors, it is called polygonal law. It is called polygonal law. अच्छे से समझा? एकदम श्योर? वेक्टर a plus वेक्टर b is वेक्टर b plus वेक्टर a. Which law? वेक्टर a plus वेक्टर b plus वेक्टर c is वेक्टर a plus वेक्टर b plus वेक्टर c. मेरा बोलने का स्टाइल सुनो। वेक्टर a plus वेक्टर b plus वेक्टर c is वेक्टर a plus वेक्टर b plus वेक्टर c। मतलब मैं जहां पे पॉज दे रहा हूं, राइट, वहां पे ब्रैकेट नहीं आ रहा है। बाद में जब मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं वहां पे ब्रैकेट आ रहा है। वेक्टर a plus वेक्टर b plus वेक्टर c is वेक्टर a plus वेक्टर b plus वेक्टर c। You see what I see? समझा अच्छे से? इसको मैं कैसे बोलूंगा? वेक्टर a plus वेक्टर b plus वेक्टर c plus वेक्टर d plus वेक्टर e। मतलब मैं एक एक ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं। एज पर बॉडमस रूल आई शुड गो इन स्टेप्स ऑफ 2 2। ये 2 लिया, इसको 1 बनाया, फिर इसके साथ ये 2 लिया, ये पूरे को 1 बनाया, फिर इसके साथ ये 2 लिया, ये पूरे को 1 बनाया, फिर उसके साथ ये 2 लिया। इज दैट क्लियर? इट इज समथिंग लाइक दिस, कार पुलिंग। मान लो बेटा अभी डीजल पेट्रोल एकदम शॉर्टफॉल आ गया, एंड वी रियली नीड टू सेव डीजल पेट्रोल, राइट। एक बंदा पारला रहता है, राइट, उसका एक फ्रेंड अंधेरी रहता है, उसका एक फ्रेंड जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, कांदिवली, बोरीवली, और सपोज ये 7 सीटर कार है, तो ये एक ही बंदा कार निकालेगा, अपने नेक्स्ट फ्रेंड को पिक करेगा। तो अभी एक और एक 2 हो गए कार में, फिर ये दोनों इसको पिक करेंगे, ये तीनों इसको पिक करेंगे, अल्टीमेटली इट्स अ 7 सीटर कार। एक ही कार में 7 फ्रेंड्स जा रहे हैं, 7 लोग अपनी अपनी कार लेते तो सेम स्पॉट पे जाना था उनको, लेकिन बहुत सारा डीजल और पेट्रोल वेस्ट हुआ। सो दिस इज कारपूलिंग। अब जैसे आप कोई एक ही एरिया में रहते हो, 4-5 फ्रेंड्स, है ना, तो आपके पेरेंट्स अंदर अंदर क्या डिसाइड करते हैं कि भाई चलो ये 3 जन एक ही रिक्शा में जाओ, आज का पेमेंट मैं करूंगा। हाँ, आपके लेक्चर्स मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो मंडे एक फ्रेंड ने पेमेंट किया, वेडनेसडे दूसरे फ्रेंड ने पेमेंट किया, फ्राइडे तीसरे फ्रेंड ने पेमेंट किया, तो तीनों का पैसा भी बचा, डीजल पेट्रोल भी बचा, टाइम भी बचा, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द स्टाइल ऑफ सॉल्विंग मल्टीपल वेक्टर्स, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉनल लॉ। अब एकदम ध्यान से सुनो बेटा, इधर मैं क्या कर रहा हूं। ये मैंने एक वेक्टर नंबर 1 बनाया इधर, लेट मी कॉल दिस इज वेक्टर ए। फिर इधर मैंने वेक्टर नंबर 2 बनाया, लेट मी कॉल दिस इज वेक्टर बी। फिर इधर मैंने वेक्टर नंबर 3 बनाया, लेट मी कॉल दिस इज वेक्टर सी। फिर इधर मैंने 4th वेक्टर बनाया, लेट मी कॉल दिस इज वेक्टर डी, राइट। अभी यू नो द रूल कि यू कैन नॉट चेंज द वेक्टर, बट कैन यू शिफ्ट द वेक्टर। तो ये वेक्टर ए का
इक्वल वेक्टर इधर बनाया बेटा आपने, बराबर। ये ए जिधर एंड होता है, ए जिधर एंड होता है उधर आपने बी लगाया, करेक्ट। मतलब इसका पैरेलल वेक्टर इधर बनाया। माइंड यू, आई एम नॉट अलाउड टू चेंज द वेक्टर, बट आई कैन शिफ्ट द वेक्टर। तो ए और बी कंटिन्यूटी में आ गए। अभी वेक्टर सी बी के एंड में लगा, एम आई राइट? ये बेटा वेक्टर सी हो गया, करेक्ट। और वेक्टर डी ये इधर लगाया, दिस इज वेक्टर डी, तो ये वेक्टर डी इधर लगाया, बराबर बेटा। तो कैन आई से दिस बिकम्स द क्लोजिंग साइड ऑफ अ पॉलीगॉन? क्लोजिंग साइड इज द आंसर। इधर आपके पास कितने वेक्टर्स थे बेटा? 1 2 and 3। तो कैन आई से क्लोजिंग साइड इज दिस रेड वन? दिस गिव्स मी क्वाड्रिलेटरल। अगर मेरे पास 4 वेक्टर है तो क्लोजिंग साइड विल गिव मी पेंटागन, यस और नो? अगर मेरे पास 5 वेक्टर्स है तो क्लोजिंग साइड विल गिव मी हेक्सागन। अगर मेरे पास n साइड्स है, n मुझे नहीं मालूम है कितने हैं, तो कैन आई से द क्लोजिंग साइड विल बी n+1। एक ज्यादा, आपके पास 3 वेक्टर्स थे तो फाइनल आंसर 4 आया, 4 वेक्टर्स थे तो 5 आया, n साइड से तो कितना आएगा? मतलब ये बेटा सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। कॉम्यूटेटिव लॉ समझा आपको? वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज वेक्टर b प्लस वेक्टर a। एसोसिएटिव लॉ समझा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, राइट। इधर आप क्या कर सकते हो, पहले a प्लस b सॉल्व करो, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ये। टेल मी हु इज दिस? वेक्टर a प्लस वेक्टर b, बराबर। फिर आप इसको c के साथ क्लब करो तो आपको ये मिलेगा। कैसे लिखोगे? वेक्टर a प्लस वेक्टर b एक ब्रैकेट में और बाद में वेक्टर c। इससे एग्जामिनर को जजमेंट आता है ब्रैकेट लिख के, क्योंकि स्टूडेंट ने पहले वेक्टर a और b लिया होगा, उसका जो आंसर है उसको c के साथ क्लब किया होगा। व्हाट विल बी माय ब्लू डॉटेड आंसर? विल इट बी वेक्टर r? बिकॉज़ मेरा जर्नी एंड हो गया। Will it be vector a plus vector b plus vector c plus vector d? ब्रैकेट्स में कहाँ रखूंगा बताओ? a plus b और बाद में a plus b के साथ में c, बराबर ना? उसके बाद में ब्रैकेट नहीं रखूंगा तो चलेगा, बिकॉज d वैसे भी लास्ट वेक्टर है। यस और नो? प्लीज टेल मी। कॉम्यूटेटिव लॉ समझा? एसोसिएटिव लॉ समझा? पॉलीगॉनल लॉ समझा? कॉम्यूटेटिव लॉ खुद ट्रायंगल लॉ है। कॉम्यूटेटिव लॉ खुद ट्रायंगल लॉ है। नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायंगल लॉ? इफ यू हैव 2 वेक्टर्स टेकन इन एनी मैनर, अरेंज देम इन ऑर्डर। अरेंज देम इन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहला वेक्टर जिधर खत्म होता है दूसरा वेक्टर उधर से शुरू होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? सो चेक, आई एम डूइंग दैट, चेक। ये जो मैंने डायग्राम्स बनाया ना बेटा, ये मैंने स्केल का हेल्प लेके बनाया, मतलब ये एग्जैक्ट 8 इंचेस है, राइट? ये एग्जैक्ट 8 इंचेस है वेक्टर है, और ये एग्जैक्ट 6 इंचेस है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका पैरेलल वेक्टर बना रहा हूं बेटा इधर, सेम साइज, मतलब पैरेलल भी नहीं, मैं तो बोलूंगा इक्वल वेक्टर बना रहा हूं, चलेगा? ये मैंने इक्वल वेक्टर बनाया, करेक्ट? आई एम कॉलिंग दिस इज वेक्टर ए। Now I am taking end point of vector A and I am shifting vector B there. ये बेटा exactly 6 इंचेस का बनाया मैंने, तो ये 6 इंचेस मैं इधर बना रहा हूँ, ये 6 इंचेस मैं exactly इधर बना रहा हूँ। Okay, is it vector B? मतलब ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। Given a chance to go directly, will I go this way? Yes. Will I go this way? Yes or no? तो बेटा ये रेड वाला कौन हुआ? Is it vector R? Which is equivalent to A plus B? Which is equivalent to A plus B, समझा? Now this is called triangle law. अभी triangle law का statement ध्यान से सुनो. If 2 vectors are arranged in such a way that they form 2 sides of a triangle taken in order. Taken in order मतलब पहला वेक्टर जिधर खत्म होता है दूसरा वेक्टर उधर शुरू होता है. Then the third side of the triangle
taken in opposite order is the result. अब ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3, ये तीनों का तीनों ऑर्डर में हुआ, तीनों का तीनों, पहला जिधर खत्म दूसरा उधर शुरू, पहला जिधर खत्म दूसरा उधर शुरू, दूसरा जिधर खत्म तीसरा उधर शुरू, तीसरा जिधर खत्म पहला उधर से शुरू हुआ था। ऐसे नहीं लेना है आपको। ये जो तीसरा वेक्टर है ना बेटा, ये उल्टा लेना है। उसका रीजन सुनो, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और आपको यहां तक पहुंचना है, राइट? तो या तो आप पाथ 1 लेके फिर 2 लेते, और अगर आपके पास डायरेक्ट चॉइस होता तो आप डायरेक्ट इधर से इधर जाते। Why will you draw this arrow this way? हाँ, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, मॉल में जा रहा हूँ, फिर एस्केलेटर से नीचे आ रहा हूँ, तो मैं मॉल में गया ही क्यों? Are you getting my point? मतलब बेटा थर्ड वेक्टर उल्टा सीक्वेंस में लेना है, समझा? कम्यूटेटिव और ट्रायंगल में won't the resultant vector be less than a plus b because Absolutely a plus b no. is the distance. Absolutely no. Absolutely no. I'm coming to that only. I'm coming to that only. वेक्टर a plus वेक्टर b, जब तू वेक्टर बोल रही तो डिस्टेंस बोलना ही नहीं। I'm saying a plus b is the distance while the like, final vector is the ये ना, displacement. हाँ, ये दोनों के टोटल से कम होगा, होना भी चाहिए। अगर बेटा ये 4 है और ये 3 है, स्टिकिंग पेजेस पे वन साइड। वापस सुन बेटा, ये मैं 4 मीटर चल रहा हूँ और ये मैं 3 मीटर चल रहा हूँ, मतलब मैं 7 मीटर चल रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, वो 5 हो जाएगा। Exactly, वही तो चाहिए। But then you said it's a plus b, like vector a. अरे बेटा वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज वेक्टर r लिख रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूँ, मैंने r इज a प्लस b नहीं लिखा है। I am not writing algebra, I am writing vector algebra. That is the most important thing. Scalars obey algebra, vectors obey vector algebra. समझा कि वापस बोलूं? अगर बेटा मैं ये लिखता ना तो ये गलत है, मुझे ये लिखना चाहिए, राइट? अभी अगर मैं ये लिखता हूं ना तो ये भी गलत है। ये सिर्फ एक ही सिचुएशन में सही है, when the angle between them is zero. याद करो लास्ट टाइम हम लोगों ने सम किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर लाइज बिटवीन सम एंड डिफरेंस, बराबर? ऐसे कितने आंसर्स पॉसिबल है? इनफाइनाइटली में। इसका एक ही आंसर पॉसिबल है। सोचो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना तो इसका एक ही आंसर पॉसिबल है, 4 + 3 7, खत्म, स्टोरी ओवर। लेकिन ये तो स्केलर्स है ना, राइट? अगर ये वेक्टर ऑफ साइज 4 है और ये वेक्टर ऑफ साइज 3 है तो r के कितने आंसर्स पॉसिबल है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव इन पैरेललोग्राम लॉ। बट कितने आंसर्स पॉसिबल है? इनफाइनाइटली मैनी। मेरा आंसर 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 1 से कम नहीं, 7 से ज्यादा। शैल आई कंटिन्यू? समझा बेटा? अभी इधर आ जाओ, वापिस इधर आ जाओ। मैं पहले वेक्टर ए ले रहा हूं, फिर मैं वेक्टर बी ले रहा हूं, राइट? दो वेक्टर्स लिए, दे आर टेकन इन सीक्वेंस कि नॉट इन सीक्वेंस? उसको बोलते हैं टू बी टेकन इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जहां पे फर्स्ट वेक्टर खत्म होता है वहां से सेकंड वेक्टर शुरू होता है। सो लिसन टू द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ नाउ। When two vectors are arranged in such a way that they form two sides of a triangle taken in order, then the third side of the triangle taken in opposite order is the resultant. Taken in opposite order is the resultant. तो मेरा आंसर क्या है बेटा? Vector R is vector A plus vector B. Means being given chance, I would have gone directly over here. अभी बेटा इनके बीच का एंगल चेंज भी तो हो सकता है ना। ये एंगल मान लो ऐसा हुआ तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये एंगल ऐसा नहीं हो कि ऐसा हुआ तो माइनस हो जाएगा। यस और नो? वी आर कमिंग टू दैट। यू जस्ट टेल मी राइट नाउ, आर यू अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ? इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन सच अ वे दैट दे फॉर्म टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल taken in order, then the third side of the triangle taken in opposite order is the result. अब मान लो ये गलती से बेटा आप एरो ऐसा कर देते, उल्टा,
तो आप उसको क्या लिखते, माइनस आर इज माइनस ए माइनस बी, क्योंकि आपने वेक्टर ही उल्टा कर दिया। अब ये तीनों को ऐड करो, किसको, ए को, बी को और माइनस आर को। आपका आंसर क्या है, ए को, बी को और माइनस ए माइनस बी को ऐड करो, 0 आया। दैट मींस आर यू बैक टू द सेम पॉइंट, राइट? When the total is 0, we say that you are back to the original point. You are back to the original. And the vectors are said to be taken in order, cyclic order. ये एरो अगर मैंने ऐसे नहीं बनाया, उल्टा बनाया, then they are called cyclic order. 1 2 3, ये cyclic order हुआ। और बेटा ये ट्रायंगल लॉ नहीं है, क्योंकि आपको तीसरा वेक्टर उल्टा लेना है, राइट? नाउ स्टूडेंट में से कि सर आपने पहले ए लिया बाद में बी लिया, मैं पहले बी लेके बाद में ए ले सकता हूं क्या? क्या मेरा आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। करके देखते हैं। पहले बेटा बी लिया ये स्टूडेंट ने, हाँ पहले ये स्टूडेंट ने बी लिया, पहले ये स्टूडेंट ने बी लिया, ये बी लिया, मैंने बोला वैसे ये 6 इंचेस का है, तो ये मैं 6 इंचेस का वेक्टर इधर बना रहा हूं, हाँ ये मैंने 6 इंचेस का वेक्टर बनाया, फिर ये मैंने 8 इंचेस का वेक्टर इधर के एंड पॉइंट से बनाया। ओके, नाउ आई हैव टेकन बी फर्स्ट एंड देन आई हैव टेकन ए। इसका मतलब द क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल विल बी दिस, यस और नो? विल आई कॉल दिस एज आर, बट हाउ विल आई राइट दिस? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। माइंड यू, you will find these two vectors to be exactly the same. ये दोनों वेक्टर्स बेटा पैरेलल भी होंगे और सेम साइज के भी होंगे, मतलब इक्वल वेक्टर हुआ। Now apply common sense. Left hand sides are same, तो right hand sides must be same. Satisfied? Yes or no? Left hand sides are same, तो right hand, पहले बेटा मैं 4 मीटर चल के फिर 3 मीटर चलूं, कि पहले मैं 3 चल के 4 चलूं। Can I say my answer is displacement vector is of size 5, distance is 7, मैं distance की बात ही नहीं कर रहा हूँ। What is my title? Laws of vector addition, means I am using algebra की vector algebra। अच्छे से समझा बेटा? अभी ये जो triangle law है ना, ये जो triangle law है, that itself becomes parallelogram, because now you are interested in two most important things. What is size of vector R? Point number 1. And next is what is direction of vector R? What is direction of vector R? Because vector R, because it is a vector, it should have magnitude and direction both. So that is given by parallelogram law. इसका प्रूफ बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, लेकिन मैं इसका एंड रिजल्ट देता हूं, एंड रिजल्ट। अब इसका एंड रिजल्ट क्या है, ध्यान से सुनो। ये मैंने वेक्टर वापस इधर बनाया, वेक्टर ऑफ साइज 8 मैंने वापस इधर बनाया, फिर मैंने वेक्टर ऑफ साइज 6 इधर वापस बनाया, वेक्टर ऑफ साइज इधर 6 वापस बनाया मैंने। बट ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली, इसके एंड पॉइंट से मैं इसका वेक्टर बनाता था। That means the second vector starts at the end point of the first vector. इधर ऐसा नहीं किया मैंने, इधर क्या किया मैंने, ये वेक्टर को शिफ्ट करके इधर लेके आया। Am I allowed to do that? Yes. Yes, I cannot change the vector, but I can shift the vector. इधर मैंने वेक्टर कैसे बनाया था, A जिधर खत्म होता है B उधर शुरू होता है। इधर मैंने क्या बनाया, A जिधर से शुरू होता है B भी उधर से ही शुरू होता है। Exactly. तो बेटा ट्रायंगल लॉ and parallelogram law, they give me the same resultant vector R, लेकिन फर्क क्या है, triangle law cannot give me the final size and direction, whereas parallelogram law can do that. Now what is parallelogram law? You must complete a parallelogram. ये बेटा इसको डॉटेड पैरेलल लाइन बनाया मैंने, इसको फिर मैंने इसको डॉटेड पैरेलल लाइन बनाया, पैरेलल है एकदम पैरेलल, तो बेटा ये मीटिंग पॉइंट हुआ, राइट? What I will do is, ये दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट से ये मीटिंग पॉइंट पे मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, और बेटा ये वेक्टर भी एग्जैक्टली यही वेक्टर है, एग्जैक्टली यही वेक्टर है। ओनली थिंग इज
what was the name of this red vector here? Third side of the triangle taken in opposite order. इधर इसका नाम क्या हो जाएगा? Very good. Diagonal of a and that also should start from the same starting point. क्योंकि बेटा diagonal तो ये भी हो सकता था, बराबर. अब आप वेक्टर R को देखो, वेक्टर A को देखो और वेक्टर B को देखो. Are all of them co-initial? Yes. जो कि इधर नहीं था. माइंड यू, इसका और इसका आंसर एकदम सेम है. ये जो रेड वेक्टर का साइज है ना, ये रेड वेक्टर का साइज एकदम सेम होगा. बट पैरेललोग्राम लॉ का फायदा ये है कि इट कैन गिव यू द साइज ऑफ दैट वेक्टर, राइट? आई एम गोइंग टू प्रूव दिस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? बट द आंसर इज रूट ऑफ a square plus b square plus 2ab cos of theta. इसका मतलब ये होता है कि आपको वेक्टर a का साइज दिया जाएगा. You will be known about this. वेक्टर b का साइज दिया जाएगा. You will be aware of this. और उधर जो मैंने थीटा लिखा है ना, थीटा, that theta is angle between these two vectors. ये भी बेटा दिया जाएगा. Now check please, how many things do you have there? Everything. 4 Yes. R A B थीटा. 4 में से बेटा आपको 3 मालूम है. 4 में से आपको 3 मालूम है. यस और नो? Yes. अभी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. एकदम सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ये है बेटा वेक्टर A, इसका साइज है 4, और ये है वेक्टर B, इसका साइज है 3. आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या आना चाहिए? रिजल्टेंट का आंसर क्या आना चाहिए? मान लो, माइंड यू, मैंने A और B डायग्राम दे दिया. उनके बीच का एंगल क्या है? उनके बीच का एंगल क्या है? 0. प्राउड ऑफ यू. वेरी गुड, वेरी गुड. बराबर. आपको क्या लग रहा है ये दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 7. करके देखे, करके देखे. पहला आंसर बेटा, जब थीटा 0 होता है, what will be my answer of R? Will it be root of 4 square plus 3 square plus 2 4 3 cos of 0? And what is cos of 0? So proud of you. Very good. अब इधर 1 डाल के देखो. जब आपने इधर 1 डाला, does it look like 4 square plus 3 square plus 2 4 3? Yes. मतलब बेटा does it sound like 4 plus 3 का स्क्वायर रूट? तो should it be 4 plus 3? Should it be 7? So we get very simple rule, very simple rule. Vectors in the same direction are to be added. Vectors in the same direction are to be added. अभी बेटा same diagram को मैं थोड़ा अलग तरीके से दे रहा हूँ. I am giving you this in a little different way. What will be this? This is vector of size 4 and this is vector of size 3. मान लो बेटा वेक्टर B को मैंने उल्टा कर दिया. आपको क्या लग रहा है? क्या आंसर आना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. देखते आता है ये. थीटा कितना इधर? So proud of you. Very good, very good. Solve करते हैं बेटा. Theta is 180. Mind you, cos of 180 is minus 1. Very nice, very nice. So solve करते हैं इसको. R is root of, come on, 4 square plus 3 square plus 2 4 3 cos of 180. And what is cos of 180? So does it sound like 4 minus 3 the whole square? Right? तो मेरा आंसर आना चाहिए प्लस माइनस 1. लेकिन मैं -1 नहीं ले सकता. क्यों नहीं ले सकता? वेरी गुड. तो बेटा आपका आंसर आया 4 minus 3. Is it 1? Yes. आंसर टू योर क्वेश्चन बेटा. वेक्टर तो वही है ना, दोनों के साइज सेम है 4 and 3. लेकिन एक बार मेरा आंसर 7 आया, एक बार मेरा आंसर 1 आ रहा है. यस और नो? डिस्टेंस का साइज चेंज नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का साइज चेंज हो सकता है. और कितने आंसर्स आएंगे ऐसे में? वेरी गुड. मेरा मिनिमम आंसर होगा डिफरेंस, मैक्सिमम आंसर होगा. अभी बेटा तीसरा डायग्राम देता हूं. कॉन्सेंट्रेट. अगर बेटा एक वेक्टर मैंने दिया ऐसे ऐसे,
दिस इज वेक्टर ए साइज 4 और दूसरा वेक्टर मैंने दिया ऐसे बी साइज 3। अब आपको क्या लग रहा है आपका आंसर क्या आएगा? अभी आपको क्या लग रहा है आपका आंसर क्या आएगा? देखते हैं। व्हाट इज cos ऑफ 90? 0 बराबर ना। तो आप ऐसे चल के फिर आप ऐसे चल रहे राइट। आपको डायरेक्ट चांस मिलता तो ऐसे चलते कि नहीं? चलो बेटा थर्ड आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी थर्ड आंसर? थीटा इज 90 करके देखो। r is root of 4 square plus 3 square plus 2 4 3 cos of 90 and what is cos of 90? 0। इसका मतलब मेरा लास्ट टर्म 0 हो गया। Am I left with root of 4 square plus 3 square? Am I left with root of 4 square plus 3 square? Is my answer 5? अभी मैंने 3 एंगल्स लिए हैं। एक चौथा रैंडमली लेके देखते हैं। आपकी मर्जी का 60 ले ले बिकॉज cos 60 is easy, cos 60 is half। तो बेटा एक एंगल बेटा मैं 60 ले देता हूँ। 60 कैन आई से cos of 60 is half। आपको क्या लग रहा है आपका आंसर 1 और 7 के बाहर जाएगा क्या? नहीं जा ही नहीं सकता है। बराबर चेक करें थीटा इज 60 तो कैन आई से r is root of 4 square plus 3 square plus 2 4 3 cos of 60 is half। cos of 60 is half मतलब ये हो गया 16 plus 9 ये 2 और cos 60 कट हो गया राइट प्लस 12। तो बेटा आपका आंसर हो गया 25 and 12 root 37। Can I say it is little more than 6? Little more than 6 point something लेकिन मेरा आंसर पक्का 1 और 7 के बीच में। So what is my final most conclusion? My final most conclusion is resultant vector नहीं उसका size। ये resultant vector। अच्छा tell how will I write this resultant vector? Resultant vector R is resultant vector A plus resultant vector B। Vector plus vector is a vector। मतलब ये वेक्टर है बेटा। ये कौन है? वेक्टर है। लेकिन ये कौन है? इसका साइज है। तो दोनों में फर्क है। वेक्टर A plus वेक्टर B is वेक्टर R। What does this mean? वेक्टर plus वेक्टर should be a vector। करेक्ट। लेकिन ये तो मैं सिर्फ मुझे वेक्टर दे रहा है। अभी मुझे इसका साइज भी ढूंढना है, डायरेक्शन भी ढूंढना है। आज मैं सिर्फ साइज ढूंढ रहा हूँ, डायरेक्शन नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। और ये पूरा प्रूफ करने वाले हम लोग। आई एम गोइंग टू प्रूव कैसे आया ये। आई एम गोइंग टू प्रूव कि ये कैसे आया। ओके आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल बॉदर नहीं करना है कैसे आया, बट आई स्पेंड 5-10 मिनट्स जस्ट टू प्रूव इट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो माइंड यू triangle law and parallelogram law are equivalent because they give me the same answer, but they are not equal. What is the difference between these two laws, beta? Over here the resultant is the closing side of a triangle taken in opposite order, and over here all three vectors are not co-initial. Over here the diagonal of a parallelogram is my final answer. And can I say they are co-initial? Yes. और वो भी कौन सा diagonal? It should have the same starting point as those of original. तो बेटा ये दोनों laws equivalent है, लेकिन ये दोनों law में superior कौन है? Yes, this is a superior law. Mind you, they are equivalent, but this is superior law. Because it can give me magnitude and it can give me direction. मैं फिलहाल डायरेक्शन को टच ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ पहले मैग्नीट्यूड सिखाना था। अच्छे से समझा बेटा? ये एकदम अच्छे से समझा। So far we have done 5 laws. Commutative law समझा, associative law समझा, polygonal law समझा। ये तीनों सीक्वेंस में है, इसलिए पहले मैंने इनको 1 2 3 किया। बाद में इसका और इसका मतलब सेम होता है। Yes or no? मैं ऐसे जाके ऐसे जाऊं तो भी ऐसे गया, मैं ऐसे जाके ऐसे जाऊं तो भी ऐसे गया। अभी बेटा ये डायग्राम में मैं अगर सिर्फ ब्लैक और ग्रीन पे फोकस करता हूं, इज इट गिविंग मी ट्रायंगल? नो। अगर मैं सिर्फ ब्लू और ग्रीन पे फोकस करता हूं, देन आल्सो इट इज गिविंग मी ट्रायंगल। आर यू गेटिंग दिस? दैट मींस नाउ दे आर इंटरलिंक्ड।
इसलिए बिल्कुल इसके नीचे मैंने ये लिखा. Is that very clear? ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट समझा बेटा? What is triangle law का statement? Come on. If two vectors are arranged in such a way, yes, come on, that they form two sides of a triangle. Taken in order. Very good. Taken in order. Then the third side of the triangle. Taken in opposite order is the resultant. समझा बेटा? Can we say triangle law and parallelogram law are equivalent? Yes. आपने सिर्फ क्या किया? आपने इसके बदले ये किया. You are just shifting it. Are you allowed to do that? Yes. You can shift the vector, no? Yes. So triangle law and parallelogram law give me the same answer. Absolutely the same answer. सर वो जो कम्यूटेटिव लॉ का जो डायग्राम है वो पैरेललोग्राम लॉ से भी मतलब ये बिल्कुल आ सकता है ना बेटा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा. हाँ, वो पैरेललोग्राम है. अगर ये मैं अप्लाई करता तो ये परफेक्ट रेक्टेंगलोग्राम रेक्टेंगल बनेगा. एंड कैन आई से एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेलल? 100% yes. So out of triangle law and parallelogram law, which law is superior? Parallelogram. So I thought में कम your mind से triangle law से आंसर आ जाता है, तो हम लोग parallelogram law पे क्यों जा रहे हैं? Triangle law से हमको सिर्फ बेटा डायग्राम मिल रहा है, लेकिन मुझे इसका साइज ढूंढना है और इसका डायरेक्शन ढूंढना है. That only parallelogram can do. Mind you, today we have spoken about size only. Today we have spoken about size only. डायरेक्शन के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा. ओके, व्हेन वी मीट ऑन मंडे ना, आई एम गोइंग टू प्रूव दिस एज अ रैपिड फायर राउंड, बिकॉज इसका प्रूफ आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा. आपका बोर्ड एग्जाम में 12th का सिलेबस होता है सिर्फ, और ये 11th का चैप्टर, तो आपको ये डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में पूछेंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. बट जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन ये मैं प्रूव करूंगा कि कैसे आया, और डायरेक्शन ढूंढना तो अभी बाकी है. तो नेक्स्ट टाइम आई विल स्पीक अबाउट डायरेक्शन आल्सो. Please let me know. Have you understood this? Yes. Okay. Now I am going for the last law, and then if time permits, we will go back to solving MCQs, remaining MCQs of assignment work. Distributive law, very simple. बेटा आपने स्कूल में ये किया है कि नहीं? A times x plus y. Tell me what is it? Is it ax plus ay? So are you distributing a to x and a to y? अच्छा, मान लो इधर माइनस साइन होता तो माइनस, राइट? अभी वेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी. कोई भी दो वेक्टर को आप ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करो, आपकी मर्जी. मान लो मैंने बी और सी को ऐड या तो सब्ट्रैक्ट किया, बराबर? अभी ये जो आया ना, उसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया. तो बेटा मल्टीप्लिकेशन की मेरे पास वेक्टर में दो सिंबल्स है. ये डॉट भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है. मान लो मैंने डॉट लिखा, तो मेरा आंसर क्या आएगा? ए बार डॉट बी बार प्लस माइनस ए बार डॉट सी. कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. कोई बात नहीं बेटा, इधर क्रॉस कर दो. इज दैट क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब समझा? टेल मी व्हाट इज 2 times 3 plus 4? One way, bottom 7 2s are. Second way, 2 3s are plus 2 4s. Is that clear? Distributive law समझा? So totally there are 6 laws of vector addition: commutative, associative, polygonal, triangle, parallelogram, distributive. Which is the supermost law? Parallelogram. अच्छे से समझा? Yes. If vector A and vector B are having sizes A and B, मैं बोल रहा हूँ वेक्टर A and vector B are having sizes A and B, and if theta is the angle between those vectors, then how is the resultant given? Square root of पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा cos of the angle between them.
cos of the angle between. Can I say my final answer cannot be less than the difference and cannot be more than the sum? Yes. My final answer cannot be less than the difference and more than the sum. Is that very, very clear? When will I add the vectors? When will I get maximum answer? Tell me. When the angle is 0 or 180? 0. Very good. Over here बेटा मुझे maximum answer मिलेगा. When will I get minimum answer? 180. Is that very clear? Yes. Right? Can I say for rest of the angles, my answer will be between first and second? Yes. सोच के देखो. इधर मेरा आंसर 1 आया था. Least इससे कम पॉसिबल ही नहीं. इधर मेरा आंसर 7 आया था. Most इससे पॉसिबल ही नहीं और कोई. Can I say मेरे बाकी के सारे आंसर्स, मैंने तो एक 60 डिग्री लेके बताया ना बेटा, आप 30 डिग्री लेके देखो, 45 डिग्री लेके देखो, कुछ भी एंगल लेके देखो, राइट? नाउ यू मे थिंक कि सर हम लोगों ने cos of 210 लिया तो, cos of 240 लिया तो, वो तो बेटा उल्टा नेगेटिव वैल्यूज होने वाला है. cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is half, cos 90 is 1, cos 120 is -half. तो बेटा इधर माइनस साइन आ जाएगा, आपका आंसर और भी रिड्यूस हो जाएगा. लॉजिक समझा? तो यू टेक एनी एंगल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. योर हाईएस्ट आंसर इज सम ऑफ द साइजेस एंड योर लोएस्ट आंसर इज. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एकदम अच्छे से. थियरी नोट्स पे आ जाओ बेटा. थियरी नोट्स पे सिर्फ टिक कर दो. कौन सा पेज हो गया? Beautiful explanation is given in the handwritten pages. Theory pages पे I want you to be on page number 12. उधर बेटा ये 3 definitions एकदम चैप्टर के एंड में होंगे. कौन से 3 definitions? पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, राइट? उसके बाद में पोलर और एक्सियल का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया. तो उसको लिख के रखो. Will be done at the time of cross product. डेफिनेशन नंबर 12 और 13 के बाजू में बेटा पेंसिल से लिख के रखो. विल बी डन एट द टाइम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. मतलब तभी तक आप उसको देखना ही नहीं है. अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 सिखाया. चेक करो प्लीज. उधर मैंने साइजेस क्या लिए हैं? 8 and 6. एक मिनट, इधर क्या लिया था? 4 and 3 ना. तो 4 and 3 का अगर राइट एंगल पे आंसर 5 आ रहा है तो 8 and 6 का आंसर क्या है? डबल किया है ना मैंने. अच्छा 3, 4, 5 को बेटा बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट. लाइकवाइज 6, 8, 10 is also a triplet. 7, 24, 25 is a triplet. What is the meaning of triplet? It is set of those 3 numbers which obey the rule side 1 square plus side 2 square is hypotenuse square. That is called triplet. Question number 9 टिक कर लो बेटा, सिखा दिया मैंने. अभी क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखो. हाँ, एकदम लेफ्ट डायग्राम में आपको 2 वेक्टर्स रैंडमली दिए. ओके, रैंडमली. आप मिडल डायग्राम में क्या कर रहे हो? एक मिनट, किसको शिफ्ट कर रहे हो? पहले ए को आपने प्लेस किया, ए जहां पे एंड होता है वहां पे आपने बी शिफ्ट किया. तो मिडल आंसर में आप क्या कर रहे हो? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए? वेरी गुड. अभी थर्ड डायग्राम में आप क्या करोगे? Yes, आपने पहले वेक्टर बी बनाया और बाद में वेक्टर ए बनाया. डू यू थिंक योर आंसर विल चेंज? No. तो सेकंड डायग्राम में जो वेक्टर सी है ना, मैंने उसको आर बोला है. एक ही बात. सी की बाजू में लिख के रखो इक्वल टू आर. प्लीज टेल मी, सेकंड डायग्राम में आप वेक्टर आर कैसे लिखोगे? विल यू राइट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी? वेक्टर साइन आना चाहिए उसके ऊपर. देखो मिडल डायग्राम में लिखो वेक्टर सी इज वेक्टर आर, आर इज रिजल्टेंट. Is it vector A plus vector B? थर्ड डायग्राम में आप कैसे लिखोगे? B plus vector. अच्छा, सेकंड डायग्राम और थर्ड डायग्राम में आप बेटा ये सिंबल डाल दोगे. ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है. Is that clear? ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है. Is that clear? तो क्वेश्चन नंबर 9 सिखा दिया मैंने, 10 सिखा दिया. अभी 11th में आप थर्ड लास्ट लाइन पढ़ो. थर्ड लास्ट लाइन क्या लिखा है? वेरी गुड. व्हाट इज a plus b equal to b plus a? Commutative. वेरी गुड. उसके बिल्कुल बाद वाला लाइन बॉक्स में नहीं डाला है, आप लोग बॉक्स में डाल दो. शुड इट बी एसोसिएटिव लॉ? समझा कि वापस बोलो? पेज नंबर 13 का थर्ड लास्ट लाइन वाज कम्यूटेटिव लॉ. सेकंड लास्ट लाइन जो उन्होंने बॉक्स में नहीं डाला है आप डाल दो. इज इट एसोसिएटिव लॉ? इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 सिखा दिया मैंने. टिक करो.
टर्न द पेज. क्वेश्चन नंबर 12. मैंने सिर्फ इसका ड्राइंग सिखाया. ओके, अब ध्यान से देखोगे ना, आपको एक ही बॉक्स मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया. पेज नंबर 15 पे आपको सबसे पहला बॉक्स दिख रहा है. अब ये बॉक्स कैसे आया? पेज नंबर 14 एंड 15 द प्रूफ इज देयर. तो पेज नंबर 14 और 15 अभी तक मैंने सिखाया नहीं. पेंसिल से सर्कल करो प्लीज. क्वेश्चन 12 सिखा दिया, 13 नहीं सिखाया. अच्छा, जो 13 है ना, उसके बाजू में लिख के रखो FYI. FYI का मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली. Nobody is going to ask you the proof. Nobody. So you don't have to worry about कि सर ये प्रूफ कैसे आया, right? But I will spend 5-10 minutes just to prove it for your satisfaction. Correct? Sorry? हाँ, क्वेश्चन 12 टिक करो बेटा. क्वेश्चन 12 हो गया. 13 में नेक्स्ट टाइम करूंगा. 14 हो गया, अपना चेक करो प्लीज. पॉलीगोनल लॉ हो गया. टर्न द पेज प्लीज. 15 हो गया. 15 पॉलीगोनल लॉ का स्टेटमेंट. पॉलीगोनल लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? इफ देयर आर मल्टीपल वेक्टर्स, राइट, दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे आर टेकन इन ऑर्डर. ए इधर खत्म, बी इधर शुरू, बी इधर खत्म, सी इधर शुरू, सी इधर खत्म, डी इधर शुरू. Then the closing side of the polygon taken in opposite order should be the answer. Yes. If there are multiple vectors, what will you do? You will arrange them in order. एक साइड बच जाएगा, उसको आप क्लोज करोगे तो क्या होगा? वो क्लोजिंग साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम. But how will you put the arrow? In the same order? In the opposite order. Is that clear? Yes. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 भी अपना हो गया. तो आज मैंने कंप्यूटराइज पेजेस वाइज 10th क्वेश्चन करवाया, 9th करवाया, 11th करवाया, 12th करवाया. कोई बात नहीं, रुको. 9th, 10th, 11th, 12th, 13th नहीं करवाया, 14th करवाया, 15th करवाया, 15th करा, 16th नहीं करवाया, सॉरी. In fact, today we did addition only, ना? We have not yet started with subtraction. समझा अच्छे से? अब आप हैंड रिटन पेजेस करेंगे. ये पार्ट नहीं, हैंड रिटन पेजेस नहीं है. लास्ट टाइम वी वर ऑन पेज 5, लेफ्ट साइड. अभी बेटा मैंने पेज 5 का राइट साइड कंप्लीट किया. हाँ, देखते जाओ. रिजल्टेंट वेक्टर किया, ट्रायंगल लॉ किया, साइक्लिक ऑर्डर किया, ट्रायंगल लॉ किया, एसोसिएटिव लॉ किया, टर्न द पेज, ट्रायंगल लॉ किया, पेज 6 पैरेललोग्राम लॉ किया. अभी पेज 6 का जो राइट साइड है ना, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रूविंग पैरेललोग्राम लॉ. पूरा प्रूफ ही मैंने एक जगह पे दे दिया. तो अभी मैंने क्या किया? पेज 5 का राइट साइड कंप्लीट. टिक करो बेटा. पेज नंबर 6 का लेफ्ट साइड कंप्लीट. यस सर. I don't think we will have time to continue with other problems. No problem. We can continue with the MCQs in the next class. Right? मैं देखता हूँ कुछ MCQs आप लोग खुद से कर पाओगे. मैं अभी ब्रेक टाइम में बैठ के ढूंढता हूँ कि आप कौन से MCQs खुद से कर पाओगे. जो भी MCQs में होमवर्क देता हूँ वो करके आने का. मान लो मैंने 20 MCQs दिया बेटा, 13 आपको आ गया. मैं जब आंसर रीड कर रहा हूँ आप बोलते हो यस सर आंसर मैच हो गया. तो अपना आंसर सिर्फ अपना टाइम सिर्फ 7 क्वेश्चंस में जाएगा. लेकिन अगर आप कुछ करके ही नहीं आते हो तो मैं पूरा का पूरा 20 सॉल्व कर लूँ. एग्जाम मुझे नहीं देना, एग्जाम आपको देना. व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग? आप खुद से कितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. मैं तो हुई, अगर कुछ नहीं आया तो आई एम देयर, बट मैक्सिमम आपको खुद से कितना क्वेश्चन आता है. सो असाइनमेंट 1 में व्हाट आर द क्वेश्चंस आर पेंडिंग? लेट मी चेक. असाइनमेंट 2 में आल्सो यू कैन डू सम सम्स. Then after all the assignments are over, please check your book. You will have practice papers. Turn the pages please. Page 43 पे चले जाओ. Turn करते जाओ, pages turn करते जाओ. Wait. Are you on page 76? Are you on page 76? दिख रहा है बेटा practice paper 1? बराबर. 20 MCQs है खाली. 20. आई एम श्योर इसमें से 15-16 आपको खुद से आ जाएगा. टर्न द पेज. आर यू ऑन पेज नंबर 78? प्रैक्टिस पेपर 2. अभी देखो बेटा आज फ्राइडे है, राइट? हर
दिन के बीच में अपने को एक ही दिन का ब्रेक मिलता है बीच में, एंड वेरी सून दैट ब्रेक आल्सो विल रिड्यूस. वी विल स्टार्ट विद फोर्थ लेक्चर. Physics department needs more number of lectures because of the portion size. Biology people will be throughout 3 lectures only. उनका portion आराम से खत्म हो जाता है, right? Physics and chemistry people will need more number of lectures. तो फिलहाल आपके पास golden chance है, right? जो मैथ्स फाउंडेशन के लेक्चर्स होंगे वो एडजस्ट होंगे आराम से. Maths timetable cannot disturb physics, chemistry, bio timetable because foundation course is just a supporting course. सुबह के Don't worry, नहीं होगा. Okay. सो बेटा लेक्चर के बाद में मैं MCQs ढूंढता हूँ कि आप कौन से MCQs कर सकते हो विदाउट फेल. आज अभी बोल दूँ क्या? बेटर रहेगा ना. मैं पेरेंट्स ग्रुप पे मैसेज तो भेजता ही हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ये MCQs आपको सॉल्व करके आना है. असाइनमेंट नंबर 1 में वी डिड अप टू 12. 13 होमवर्क था. असाइनमेंट 1 में आप लोग ये MCQs कर सकते हो. होमवर्क फॉर मंडे लिखो बेटा. होमवर्क फॉर मंडे. व्हाट विल बी द डेट? शुड इट बी 15? आई थिंक सो. 15 ओके. ये बेटा MCQs लिख के रखो, ये आपको सॉल्व करके आना है. असाइनमेंट 1 यू विल सॉल्व 14. 15 ऑलरेडी होमवर्क था. You can solve 16. You can solve 17 was homework. 18th टफ है. 18th के बाजू में खोपड़ी मार्क करके दो. 18th मैं सॉल्व करूंगा. You can solve 19th. 20 was homework. 21 was homework. 2 was homework. 3 was homework. 24 थोड़ा टफ है लेकिन ट्राई करो. 25 भी ट्राई करो. 26 was homework. 27 ट्राई करो. 28 आराम से कर सकते हो. 29 थोड़ा टफ है. 30 ट्राई करो. ये हो गया बेटा असाइनमेंट 1. ओके. पेज नंबर 43 टू 45. 43 टू 45. अब आप आ जाओ असाइनमेंट 2 पे. लेट मी सी असाइनमेंट 2 में से आप क्या क्या कर सकते हो. You can do. You can do third, fourth, fifth, sixth. You can do seventh, 8. You can do 8. 9. You can do 9. 10 no. 11 no. 12 no, 13 no, 14 no. Okay. Are we on assignment 3? बिल्कुल no. Dot product, cross product. Assignment 4 बिल्कुल no. Assignment 5 horse एकदम जाएंगे. Are we on practice paper 1 now? प्रैक्टिस पेपर 1 बेटा पेज 76 पे आ जाओ. पेज 76 पे आ जाओ. लेट मी चेक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वेरी गुड. 11 12. क्या बात है. 13 14 15 16. 15 थोड़ा टफ है तो ट्राई करो. ठीक है. बाद में तो मैं हुई फुल. अरे रो क्या रहे हो? कम ऑन. यू आर अ साइंस स्टूडेंट. कितना आवर्स काम करते हो दिन में तुम लोग? 5-6. तुम्हारे सारे साथ 12 से 14 घंटा काम करते हैं. ओके. सो शट अप. बोलो सर और होमवर्क दो. सर और होमवर्क दो. बोलो. 1 2 3. 1 2 4 5 6 7 8 9. Practice paper 2 1 to 9 except third नहीं करना है. Let me check. 10th नहीं कर सकते. 11th कर सकते हो. 13th कर सकते हो. 14 15
16, 17, 18, क्या बात है, 19, 20, 21, 32, 25. मतलब बेटा अपना मंडे का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. It is going to be completely MCQs, right? ये प्रूफ मैं बाद में भी कर सकता हूँ, right? पहले ये सारे डाउट्स हम लोग सॉल्व करेंगे. Is that clear? Come well prepared. अगर संडे एंजॉय करना है तो सैटरडे ये सारा काम करके रखो. Okay? DCT का क्वेश्चन ये प्लस वो होगा. हाँ, next DCT will be on next Saturday बेटा. अभी सैटरडे है ना? आज क्या फ्राइडे? हाँ तो नेक्स्ट फ्राइडे. मैं तीनों के तीनों दिन DCT नहीं ले सकता ना, तो एज पर द रूल 1 day शुड बी फॉर केमिस्ट्री, 1 day शुड बी फॉर फिजिक्स. तो केमिस्ट्री वाले लोग जो DCT ले तो छोटा DCT ले लो, 5 क्वेश्चन. मेरा DCT 20 क्वेश्चन का होता है. ओके, तो DCT विल बी ऑन फ्राइडे. सर प्लीज स्टॉप.